Hello, Assalamu alaikum, and welcome to today's podcast, Pakistan on the Climate Frontline. I'm your host, Momal Nawab. As the world gears up for COP30, the global climate spotlight is on how countries are turning promises into progress. And as for Pakistan, a country deeply impacted by the climate challenges, the devastating floods and heat waves, we'll see how Pakistan is progressing and striving for a sustainable development. So today we have our guest, a very special guest with us today, Mr. Aftab Alam, who is a global climate and development expert with over 15 years of leadership experience with across different international organizations, including UN and Oxfam. Mr. Aftab has integrated climate adaptation, gender, and sustainable development across multiple sectors and has trained over 10,000 stakeholders worldwide. So, sir, welcome to today's podcast. And शुरू करते हैं इस डिस्कशन को, चूँकि COP30 के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो लेट्स स्टार्ट कि आपने COP29 भी अटेंड किया एज ए डेलीगेट. सो आई वुड वांट टू नो आपकी जर्नी कैसी थी COP29 की. वहाँ पे आपने पाकिस्तान का स्टांस एक ग्लोबल स्टेज पे किस तरीके से देखा, पाकिस्तान ने अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट किया और कुछ चैलेंजेस जो वहाँ पे पेश आए, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दें. Thank you very much, Momal. It's a pleasure to be on this podcast. Or thank you very much for your kind introduction as well. I think this is a very important moment when you are recording this podcast because we are just weeks and days before the COP30, and I think it's very important to reflect when we talk about COP29 or any COP. It's very important to take back and to understand what COP is. For any international issues that cut across different countries and regions in terms of its causes and effects, there are efforts made at local and national level, but there are also efforts made at international levels. For those international efforts which include talks, negotiations, discussions, solutions, challenges, etc., there must be some international platform. And for climate change, the international platform is UNFCCC. What is UNFCCC? Many of your audience would know, but those who don't, I would invite them to go on Google and just try to find it out what is UNFCCC. In short, this is an international UN body that organizes discussions, negotiations, and the challenges of climate change. Every year they have an international conference which is called Conference of Parties, and the short form is COP. The last COP29 was in Baku, Azerbaijan, and when we talk about COP, it's also important to understand how COP is structured. COP has different components. For example, one of the most important and significant component is the hardcore negotiations on climate change issues and other initiatives which are being taken forward. There is another aspect of COP which is bilateral. Many governments, many groups, they have bilateral negotiations related to climate change for initiatives which may not be hardcore part of COP, but as a platform they use that opportunity to come and discuss. And the third is where private sector has an opportunity to showcase their achievements, their successes, their businesses related to climate change. As you know, that private sector is an important component of the challenges as well as solutions to climate change. So this is how the COP is structured. Now this answer is becoming longer, but I thought it would be helpful for our audience to have an idea. Pakistan participation at COP29. I had the opportunity to be there in COP29 Baku last year, 2024, and I of course had the opportunity to visit, to observe, to engage with Pakistan participants, Pakistan delegates, and the Pakistan representatives.
I think Pakistan has done exceptional job at COP29 in all the components, if not all, at least in two major components. In the negotiations, I have seen our delegates very actively preparing for the next negotiations, because the negotiations are also a jigsaw of negotiations, and you can find it like a maze. It's very easy to get lost because there are so many meetings are going on, so many negotiations are going on. And I was very happy to see Pakistan negotiators. I've seen them preparing, I've seen them thinking, I've seen them talking about the next negotiations where they were heading to, as well as within the negotiation table. They were very active, they were fantastic. So I think that is one component of the negotiations. But थोड़ा सा अगर हम बाहर का जो एरिया है जिसमें बायलैटरल चीज़ें हो रही होती हैं, वहाँ आपके पवेलियन होता है। पाकिस्तान का पवेलियन इस बार COP29 में बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही थी। ख़ासकर उसमें एक ये था कि इस बार हमारे जो पवेलियन था उसमें फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा थे, विजिटर्स जो सुनने के लिए आए हुए थे। देयर वर नंबर ऑफ इवेंट्स विच वर को-ऑर्गेनाइज्ड विद इंटरनेशनल पार्टनर्स। तो ये भी बहुत अच्छा था कि हम इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ ऑर्गेनाइज कर रहे थे और बहुत ही वैल्यूएबल डिस्कशंस हो रही थी। इसके अलावा मैंने देखा कि एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी हैज़ displayed its experiment जो उस वक्त लाइव परफॉर्म हो रहा था थ्रू आउट दी COP डेज, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रहा था। और वो पाकिस्तान का एक और एंगल इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट सामने आ रहा था। ये चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत चीज़ें इम्प्रूव भी करने की ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पे जो मैंने थर्ड कंपोनेंट थोड़ी देर पहले बात किया था COP का, जिसमें प्राइवेट सेक्टर अपनी सक्सेसेस, अपने बिजनेसेस, अपनी चीज़ों को मार्केट कर रहा होता, वहाँ मुझे पाकिस्तान की प्रेजेंस नहीं महसूस हुई। ये COP29 में भी था, इसके अलावा COP28 2023 में दुबई में था, वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ महसूस की कि बिज़नेस सेक्टर की जो पॉसिबल बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ और शोकेसिंग होती है, वो मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आई जिसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो यूथ थे हमारे, हमें पाकिस्तानी पवेलियन में यूथ नज़र आए, विच वाज गुड। लेकिन एक जो अच्छी बात है गवर्नमेंट के हवाले से कि मेरे कुछ साथियों से मेरी मुलाकात हुई, वो उन्होंने रिफ्लेक्ट बैक किया अबाउट यूथ पार्टिसिपेशन एट COP29, और वो समझते थे इसको मज़ीद बेहतर होना चाहिए था, और इस साल वो और बेहतर तरीके से इसको डेवलप करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हम अपने जो एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उन पे काम करें। बिल्कुल, तो आपने बहुत एक्सटेंसिवली हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन, कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंसिवली हो गया। होता क्या है बेसिकली, तो हमारे ऑडियंस को अंदाज़ा हो गया होगा कि व्हाट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एंड हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली आप जो है तो एक डेवलपमेंट कंसल्टेंट भी है, आप काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट सेक्टर में इंगेज भी रहते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट पॉलिसीज़ इंटरवेंशन, तो COP29 के बाद आपको क्या अच्छी पॉलिसी इंटरवेंशंस दिखी है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे भी, या वैसे भी इन जनरल डेवलपमेंट सेक्टर में भी आपने कोई चेंजेस देखी? जी गुड, थैंक यू वेरी मच, अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जब COP है, हमें ये उसकी नेचर ये है कि COP में जो कोर कंपोनेंट मैंने बताया था, द सेंट्रल कंपोनेंट इज नेगोशिएशन, एंड दिस नेगोशिएशन इज अ वेरी टाइम टेकिंग एंड लॉन्ग टर्म पेशेंट प्रोसेस। इसमें बहुत कम ही ऐसा होता है कि आप, चूँकि होती हर साल हैं, लेकिन हर साल हम किसी न किसी सतह पे आगे बढ़ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात एक वन स्टेप बैकवर्ड भी हो जाता है, लेकिन जनरली हम इस तरह बढ़ रहे होते हैं। तो हम बहुत जल्दी किसी चीज़ को, COP के डिसीजन को वापस जाके अप्लाई शायद उतना पॉसिबल नहीं होता गवर्नमेंट्स के लिए, क्योंकि और बहुत से ऑलरेडी चीज़ें प्रोसेस में चल रही होती हैं। लेकिन COP29 में एक अहम चीज़ जो डिस्कस हुई थी वो हुआ था कार्बन क्रेडिट्स के बारे में। मैं वापस आके देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर ने इस पे काफ़ी काम करने की कोशिश की, ऑल्दो कि उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, लेकिन बहुत अच्छी कोशिशें
हुई हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि कॉप से वापस लेके आए। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम पिछली कॉप से अगली जो आने वाली कॉप 30 है, बाय द वे जो बेलम ब्राज़ील में हो रही है, हम आगे जाके बात करेंगे उसमें जो एक चैलेंजिंग टाइम पाकिस्तान पे आया था वो था फ्लड्स, मॉनसून रिलेटेड फ्लड्स। इसके अलावा मॉनसून फ्लड्स वर प्रीसीडेड बाय हीट वेव्स इन पाकिस्तान, और वो हीट वेव्स वर आल्सो प्रीसीडेड बाय लो रेनफॉल इन विंटर सीजन। ये चैलेंजेस पाकिस्तान ने फेस किए, बड़े बड़े चैलेंजेस, और उसके बहुत बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ी। जैसे तकरीबन लाखों लोग हमारे मॉनसून सैलाब से मुतासिर हुए, हमारे हज़ारों लोग, तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको फिज़िकल पर्सनल नुकसान पहुंचा। हमारे जानवर, कई हज़ार जानवर हमारे नुकसान हुए, और तकरीबन 1.2 मिलियन हेक्टेयर ऑफ क्रॉप एरिया हमारा नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान ने जिस तरह 2022 का फ्लड था, उस तरह 2025 का फ्लड अगर आप देखें तो पहले ये फ्लड्स हमारा जो इससे पहले बड़े फ्लड्स आए थे, जो बहुत बड़ा फ्लड था वो 2010 में आया था, और उसके बाद हमारा अगला फ्लड आने में तकरीबन 12 साल लगे, लेकिन जो उसके बाद आने में उसमें सिर्फ 3 साल लगे। तो जो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ बढ़ता जा रहा है। तो और आपके इल्म में होगा कि जर्मन वॉच की इस साल की जो रिपोर्ट है, जो कंट्री स्पेसिफिक उसमें एनालिसिस किया गया लास्ट ईयर, जो उनके एनालिसिस का था 2022, उसके मुताबिक पाकिस्तान स्टूड आउट एज द नंबर 1 क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्री। तो मुझे लगता है कि जहां ये चैलेंजेस आए वहां हमारा जो क्लाइमेट चेंज का मसला था वो ज़्यादा शिद्दत के साथ अवाम के सामने आया, हुकूमत के सामने आया, इंटरनेशनल इदारों के सामने आया। कॉप 29 में एक एग्रीमेंट हुआ था कि डेवलपिंग कंट्रीज़, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, इनको तकरीबन $300 बिलियन क्लाइमेट सपोर्ट या कोऑपरेशन की सूरत में दिया जाएगा। अगरचे डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन समहाउ एग्रीमेंट इसी पे हुआ। तो ये शो करता है पिछले 1 साल का जो पाकिस्तान की अगर केस स्टडी ली जाए कि हमारे यहाँ नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जो कॉप का प्रोसेस है, जो इंटरनेशनल प्रोसेस में फाइनेंसेस अरेंज हो रहे हैं या एग्रीमेंट हो रहे हैं, वो दे फॉल शॉर्ट ऑफ द नीड ऑफ पाकिस्तान, लेट अलोन अदर पोअर कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो मुझे लगता है कि ये स्पॉटलाइट आती है इंटरनेशनल एक्टर्स पे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट फाइनेंसेस की ज़रूरत है। बिल्कुल, अभी आपने बात की लाइक फ्लड्स वगैरह की, तो इवन 2022 के बाद ये अभी सिवियर फ्लडिंग जो हुई है पाकिस्तान में, एंड हर साल जितने भी कुदरती आफात आते हैं उसमें हमें कोई न्यू टर्म्स सुनने को मिलते हैं। जैसे इस बार नो वन वॉज अवेयर ऑफ द क्लाउड बर्स्ट, और अभी सबको पता चल गया है इस साल के फ्लड्स वगैरह से क्लाउड बर्स्ट क्या होता है और कितने हमें डैमेज हुआ है। एंड नाउ अभी जो कॉप 30 के लिए हम तैयारियां भी करें तो काफ़ी सारे लोग लॉस एंड डैमेज को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं कॉप 30 के लिए, पाकिस्तान के लिए। सो उस पर भी हम बात करेंगे। NDCs के बारे में थोड़ा बहुत बात करना चाहूँगी कि 2021 में NDCs आया पाकिस्तान का, और अभी न्यूली हमारा जो है तो NDCs 3.0 लॉन्च हुआ है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे किया है, किस तरीके से अपने लिए गोल्स रखे हैं 2030 तक, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको। जी, थैंक यू। एक तो मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि आज तक तकरीबन 62 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने NDCs सबमिट किए, और तकरीबन 197 कंट्रीज़ हैं, तो बहुत बड़ी तादाद है कंट्रीज़ की जिन्होंने NDC सबमिट नहीं करवाए। तो आई वुड अप्रिशिएट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टीम जिन्होंने वक्त पे सितंबर में अपने NDC सबमिट करवाए। सो आई रियली अप्रिशिएट, और इट्स नॉट इजी, इट्स हार्ड जॉब, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है प्रोविंसेस से, डिपार्टमेंट से। सो हैट ऑफ टू
द पाकिस्तान टीम जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंडर जो टीम इस पे काम कर रही थी, उनको एप्रिसिएशन है, तो बहुत अच्छा उन्होंने कि वक्त पे सबमिट किया। मेरे ख्याल में जो एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें वो ये हैं कि पाकिस्तान ने क्रॉस सेक्टोरल लिंकेजेस को ज़रा स्ट्रॉन्ग किया है। मिसाल के तौर पे यूथ की एम्प्लॉयमेंट को, जॉब्स को, जो ग्रीन इकोनॉमी के इनिशिएटिव्स हैं उनके साथ रिलेट करने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक और अहम चीज़ है कि इन्होंने क्लियरली बताया है कि हमारे पास एक बड़ी परसेंटेज हमारी जो कमिटमेंट्स हैं उसके लिए हमें इंटरनेशनल फाइनेंसेस चाहिए होंगे, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल कमिटमेंट्स, कि वो हमें चाहिए होंगे तब हम कर पाएंगे। मेरे ख्याल में इस डिस्टिंक्शन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ऑन द वन हैंड इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट growing example of solar energy usage, which is fantastic, and I think there is a very important lesson hidden under this success, and which means the business model of solar energy. चूँकि ये बहुत सस्ता हो गया, लिहाजा जब सस्ता हो गया, दूसरी तरफ हमारी वैसे बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। बिजली के बिलों पे मेरे ख्याल में पिछले चंद सालों में जितने लतीफ़े बिजली के बिलों पे बने हैं शायद ही किसी पे बने हों, तो वो एक ज़रबुल मिसल की शक्ल इख्तियार कर गए थे बिजली के बिल अपने ज़्यादा होने की वजह से। तो जो इसका क्या कहते हैं इकोनॉमिक जो फैक्टर था, जो इकोनॉमिक पुश फैक्टर या जो इसने एक सॉल्यूशन पेश किया एक मसले के लिए, वो बहुत अहम है। इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे बिजनेस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ये बाकी चीज़ों का भी हल निकाल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इनके साथ मिल के काम किया जाए। और जाहिर है हम चूँकि अकाउंटेबिलिटी लैब में बैठे हैं तो अकाउंटेबिलिटी का एस्पेक्ट जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो इंसेंटिव्स हैं, जो एप्रिसिएशन है, उन दोनों को अगर साथ साथ लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा कामयाबी होगी। COP30 में एक और चीज़ जिसकी मुझे जनरली ज़रा फोकस कम लगता है पाकिस्तान में, वो ये है कि देखिए जब हम क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज पे काम करने के लिए 3 मेजर एक्शंस हो सकते हैं। जो सबसे अहम एक्शन है वो है आप क्लाइमेट चेंज को क्रिएट करने वाली मशीन को रोकें। उसी को रोकेंगे मसला तो तब से वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल, और वो है ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज। तो हम ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के जितने अमल करते हैं वो जो एक्शन की कैटेगरी उसे मिटिगेशन कहते हैं। फिर यह है कि अगर हम पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो रहा है, हीट वेव्स हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, तो हमने अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या कर, उसका मुकाबला कैसे करना है ताकि हम कम से कम मुतासर हों, नुकसान कम से कम हो और हम उसी में ग्रो भी कर सकें। तो इनके तहत जितने भी आप काम कर रहे होते हैं वो एडेप्टेशंस में आते हैं। और अगर नुकसान हो जाए उसके बाद के जितने इश्यूज आ रहे, जब आप रिहेबिलिटेशन के काम कर रहे होते हैं तो वो लॉस एंड डैमेज की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए हमारे यहाँ। और चूंकि पाकिस्तान की तो 1% से कम या तकरीबन 1% के करीब GHG इमिशन है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, लेकिन सवाल ये है कि जो G20 कंट्रीज़ हैं, अब G20 कंट्रीज़ कौन से हैं ये भी मैं सजेस्ट करूंगा कि जो हमारे साथी ऑडियंस में हैं वो ज़रा सर्च करें, बहुत सौ को इल्म में होगा कि देखें कौन कौन से G20 कंट्रीज़ हैं। जो G20 कंट्रीज़ हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। हम जितना कम, क्योंकि देखें NDC क्या है, NDC वो प्लान है, प्राइमरीली वो प्लान है जहां कंट्रीज ने ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का प्लान देना है। सबसे ज़्यादा NDCs इंपॉर्टेंट हैं G20 कंट्रीज़ के, और अभी तक G20 कंट्रीज़ में तकरीबन 5-6 कंट्रीज़ ने सबमिट कराए हुए हैं। अभी जो मेजर हैं GHG वाले वो रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक डिमांड पाकिस्तान की यहाँ पर भी बायलैटरल फोरम, मल्टीलैटरल फोरम और UNFCCC COP30 में भी ये होनी चाहिए कि
जो रिचर कंट्रीज़ हैं, जो G20 कंट्रीज़ हैं, उनसे ये डिमांड करना कि आप अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें। और ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये इसलिए अहम है कि मैं साथियों को याद कराऊंगा कि जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और पेरिस एग्रीमेंट कौन सी कॉप में हुआ था, ये भी मैं अपने साथियों को जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा जाके देखें कौन सी कॉप बनती है, क्योंकि कॉप हर साल होती है, तो वो जाके देख लेंगे कॉप 2015 में कौन सी कॉप थी। कि कॉप 15 में जो उसमें ये एग्री किया गया था कि हम अपनी ग्रीन हाउस गैसेस इतनी कम करेंगे ताकि 2021 तक जो है, या 2100 तक ये 1.5 से ऊपर ना बढ़ सके, 1.5 डिग्री सी से, कंपेयर टू इंडस्ट्रियल, प्री इंडस्ट्रियल एरिया। और अगर कुछ बढ़ती भी है तो 2 से ऊपर ना जाए। ये 2 टारगेट हमने सेट किए थे। 1.5 ज़्यादा एम्बिशियस था, 2.2 थोड़ा सा रिलैक्स था। अनफॉर्चुनेटली अभी 2100 में कितने साल बाकी हैं, ज़रा बताइए। 75 years। एक्सेलेंट, वेरी गुड, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। अच्छा, 75 ईयर्स बाकी हैं। इस साल जनवरी में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा है कि जो पिछला साल था 2024, दिस वाज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। और जो हम कह रहे थे कि 2100 तक हमने 1.5 होने से बचाना है या 1.5 से ऊपर नहीं जाना, हम 1.55 तक ऑलरेडी पहुंच गए थे बाय द एंड ऑफ 2024, पिछले साल। तो दिस इज अलार्मिंग। ये अलार्मिंग इसलिए है कि अगर हमने इसको नहीं रोका तो हम तबाह हो जाएंगे। और ये एक कंट्री पाकिस्तान की बात नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ, द होल अर्थ। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड जो पाकिस्तान को और हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को करनी चाहिए कि वो अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को तेज़ी से कम करें, क्योंकि रिसर्च और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वो अगर बहुत तेज़ी से अब कम करनी पड़ेंगी, नहीं करनी पड़ेंगी तो ये टारगेट हम मिस कर सकते हैं। और अगर ये मिस कर सकते हैं तो तबाहियाँ ऐसी हो जाएंगी जो हमारे कंट्रोल से और बाहर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ये कुछ चीज़ें हैं NDC के हवाले से जो शायद मैं शेयर करना चाहता था। और बिल्कुल जैसे आपने ये 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की, तो इवन अभी जो रीसेंट फ्लड्स आए NDMA की साइड से भी ये बोला गया कि आने वाले सालों में इससे भी ज़्यादा कुदरती आफात इवन पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट अफेक्टेड। बाकी कंट्रीज़ इतना अफेक्ट नहीं हो रही। G20 की बात की आपने, तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली स्ट्रेस करना चाहिए COP30 में। COP30 पे ही आगे बात करते हैं कि टॉप प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए COP30 में पाकिस्तान को डिमांड्स क्या रखनी चाहिए। ऑब्वियसली कुछ की बात आपने की, बट कुछ और भी हम उस पर और डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए पाकिस्तान। एक्सीलेंट। एक तो मोमिल, मुझे मालूम है कि आप भी बहुत ज़बरदस्त क्लाइमेट चेंज की एक्टिविस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, तो आप भी ज़रा शेयर कीजिए कोई अगर पॉइंट जहन में आता है ताकि हम उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। हो सकता है मैं कुछ मिस कर जाऊँ। लेकिन एक तो मुझे लगता है कि NDCs के हवाले से, अच्छा NDCs जमा होने थे पहले February 25 was the deadline, फिर उसमें नहीं हुए तो September was the deadline। अब कह रहे हैं कि अक्टूबर के एंड तक एक सिंथेसिस रिपोर्ट आ जाएगी। आज हम अक्टूबर 21 में हैं, तो सिर्फ 62 कंट्रीज़ ने जमा कराए हैं, विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि बहुत ज़्यादा मज़ीद अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ीद सीरियसनेस शो करने की ज़रूरत है। और इस जो कॉज है, जो देखें, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अच्छा डॉक्टर वही होता है जो आपकी बीमारी की कॉज को पकड़ ले और उसको ठीक करे। जो कॉज को नहीं पकड़ता, सिम्टम पे काम कर रहा होता है, वो बीमारी को मज़ीद ख़राब कर देता है। तो मुझे लगता है कि हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करनी चाहिए कि GHG को कम करें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और पाकिस्तान के पास एक बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल लीवे है, नॉट ओनली साइकोलॉजिकल बट हमारे पास फैक्ट बेस्ड लीवे है कि हम मुतासिर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो एक तो ये कि इसको डिमांड इसलिए ज़रूरी है। सेकंड जो है
कि जो पिछली कॉप थी, कॉप 29, उसका जो एक ओवरऑल एम्बिशन था वो था फाइनेंस, कि हम इस कॉप में, कॉप 29 में कोई बड़ा फाइनेंस एग्रीमेंट करके निकलें। मैं वहाँ मौजूद था, कोई फाइनेंस एग्रीमेंट नहीं हो रहा था बड़ी, और वो परेशान थे जो ऑर्गेनाइजर्स थे कि ये ख़त्म हो जाएगी और अगर हमने कोई ऐलान ना किया तो बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा। तो बड़ी आखिर में जाके कर करा के वो 300 पे, और उसमें भी मैं देख रही थी कि जो एशियन कंट्रीज थी, स्पेसिफिकली इंडिया भी बहुत ज़्यादा उस पर बाद में पोस्ट कॉप कॉन्फ्रेंसेस भी हुई कि किस तरीके से इन्होंने जो एशियन कंट्रीज हैं उनको डील किया, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये वो फाइनेंस का था और फाइनेंस की बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हुई। कुछ ना कुछ कामयाबी हुई कि पहले 100 बिलियन था, 100 बिलियन से 300 बिलियन, लेकिन जो नीड है दुनिया की वो 1.2 या 3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है। तो मतलब हमें तो पीनट्स भी नहीं मिल रहे, शायद राई भी नहीं मिल रही। राई वैसे बाय द वे आपके जो पार्टिसिपेंट्स के लिए है, जो साथी देख रहे होंगे, सबसे छोटा दाना होता है, इसलिए उसका एक मकोला भी मशहूर है कि राई का पहाड़ बना दें। तो एक तो इस पे फोकस करना चाहिए, दूसरा जो फाइनेंस है इस पे डिमांड करना चाहिए कि फाइनेंस ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, कमिटमेंट करनी चाहिए। किसकी तरफ से? रिचर कंट्रीज़ की तरफ। देखें, ये वो कंट्रीज़ हैं, ये हमारे साथियों के लिए और हम सब के लिए रिमाइंडर है, जिन्होंने इसी फॉसिल फ्यूल की बेसिस पे अपनी इकोनॉमी ग्रो की है for centuries, and they became the powerful countries and economies in the world. Now is the time just to share some of their riches with the countries who are affected by those kind of fossil fuel based growth. तो मुझे लगता है इस पे फोकस करना चाहिए। फिर लॉस एंड डैमेज पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान ने कॉप में, जो जैसे मैंने कहा, हर कॉप में हमारी पार्टिसिपेशन बेहतर से बेहतर हो रही है, लेकिन जो अगर हम कहा जाए कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड अचीवमेंट हासिल की, वो 2022 के फ्लड्स के बाद जो कॉप थी, कॉप 27 शर्म शेख इजिप्ट में, उसमें पाकिस्तान वॉज एबल टू कैपिटलाइज इट्स लॉसेस of 2022 floods to push into the negotiations the loss and damage fund. और आपके इल्म में होना चाहिए, साथियों को भी मालूम होगा, it took 31 years। इसलिए मैं कह रहा था कि नेगोशिएशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इट्स ए painstaking प्रोसेस बट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। तो 31 या 32 इयर्स के बाद वो नेगोशिएशन टेबल पर पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। G77 ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज, जिसके 140 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, उनके साथ मिलके पाकिस्तान चेयरमैन था उस वक्त, तो उन्होंने ये चीज़ हासिल की। लेकिन जो लॉस एंड डैमेजेस की रिक्वायरमेंट है वो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में है, लेकिन अब तक फ्यू हंड्रेड मिलियंस ही आए हैं। अच्छा, वो फ्यू हंड्रेड जो मिलियंस आए हैं, अनफॉर्चुनेटली अब उसका एक सेक्रेटेरिएट सेटअप हुआ है, उसकी होस्टिंग जो है वो फिलीपीन में है, लेकिन ओवरऑल जो उसकी क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड बैंक के अंडर है। तो उसमें बहुत से जो पैसे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में ही जा रहे हैं। भाई, सेट किसके लिए किया था? हमारे जो सिंध के या पंजाब के या बलोचिस्तान के या केपी के या जीबी कश्मीर के लोग और दुनिया भर के लोग जो मुतासर हुए हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हुआ था। लेकिन फिलहाल तो जो रिहेबिलिटेशन हो रही है वो उन लोगों की हो रही है जिनकी वहाँ जॉब्स हो गई। हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी कोशिश करने, हम उसको भी आसान करना चाहिए। हम लॉस एंड डैमेज फंड की बात कर रहे हैं, जो आपने किसी क्लाइमेट इम्पैक्ट या डिजास्टर के बाद अप्लाई करना है। तो यहाँ तो डिजास्टर क्या, लोग बेचारे गुजर चुके होंगे, उनकी बरसियां हो चुकी होंगी, अल्लाह ना करे, और वो बच्चे जो मुतासिर होंगे वो जवान हो जाएंगे, तब अगर लॉस एंड डैमेज फंड मिला तो किस काम का। तो मुझे लगता है एक बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान को पुश कॉप में भी करना चाहिए, और उसके बाद भी चूंकि लॉस एंड डैमेज फंड की मीटिंग्स हो रही होती हैं, उन पर यह फोकस करना चाहिए कि इन रूल्स को लोकल रियलिटीज के मुताबिक चेंज किया जाए, इनको लोगों की ज़रूरत के मुताबिक किया जाए। लोग जो मुतासिर हैं, और मैं आपको बताऊं, मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अभी हम अगर देखें, आपका ये पॉडकास्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जैसे सैलाब का पानी
नॉर्दर्न एरिया से गुजर के सिंध से समुंदर में बह गया तो मीडिया की स्पॉटलाइट भी बह गई। और अब बाकी इश्यूज पे तो बात हो रही है, होनी चाहिए, लेकिन क्लाइमेट चेंज पे या डिजास्टर पे बात नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनसे जब 8 महीने बाद इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कर्ज लेके, उन्होंने लोकल मनी लेंडर से कर्ज लेके अपनी ज़रूरियात को पूरा किया। किसी ने अपने घर को सीधा किया, किसी ने अपनी फसल को सीधा किया। अच्छा, ये जो लाखों रुपए कर्ज लेके किया, वो लोकल मनी लेंडर्स, मेरे साथियों के शायद इल्म होगा कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव ये होते हैं कि हर मोहल्ले, हर गांव में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जो पैसे वाला होता है और आपको सूद पे पैसे दे रहा होता है। वो सूद पे पैसे दे रहा होता है और वो हर डेली दिन के हिसाब से सूद बढ़ रहा होता है। तो जिसने लाख रुपया लिया वो चंद सालों बाद कई लाखों का मकरूज हो चुका होता है। इसको लॉस एंड डैमेज से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? इसको लॉस एंड डैमेज से मोमिल हम यूं कनेक्ट कर सकते हैं कि जब जिनकी जिम्मेदारी है वो पैसे नहीं देंगे तो आम गरीब लोग जो बच गए, बहुत से गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, वो लोग अपने अगली आने वाली जनरेशन्स को डेट ट्रैप में फंसा दे। लिहाजा इसको टाइम पे मिलना जरूरी है। COP29 में मैं एक पवेलियन में था। मैं कोशिश करता हूँ हर जगह जाऊँ, बाकी भी देखूँ क्या हो रहा है। मैं चाइना के पवेलियन में था। एक तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि चाइना के पवेलियन में हर चीज़ जो थी वो रिसाइकलेबल थी। उनके बेंच, उनकी चेयर्स, उनके टेबल, हर चीज़ रिसाइकल। सो दैट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। दूसरा, मैंने देखा कि वहाँ पे वो एक और कंट्री इंडोनेशिया के साथ तकरीबन एक सेशन में उन्होंने डील कर ली। अपने मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स को वो लेके आए, जो बड़े बड़े उनके नाम हैं, ये सोलर एनर्जी के चीज़ें प्रोड्यूस करने वाले, और इंडोनेशिया के साथ ऑलमोस्ट दे फाइनलाइज्ड ए डील फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो मुझे लगता है कि हमें अपने पवेलियन को इस एंगल से भी देखने की ज़रूरत है, उन्हें ज़रा आउट ऑफ बॉक्स करने की ज़रूरत है, और ताकि पाकिस्तान के पास जो बहुत सी टेक्नोलॉजी हैं, बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हम रिन्यूएबल एनर्जीज़, हम ग्रीन ग्रोथ में ना सिर्फ खुद ज़्यादा ताकतवर तरीके से ग्रो कर सकते हैं, बल्कि बाकी कंट्रीज़ को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो किस तरह ग्रीन ग्रोथ में आगे ग्रो कर सकें। जी, तो अभी हम थोड़ा एंड में डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान की लोकल क्लाइमेट रियलिटीज़, पाकिस्तान के लोकली क्लाइमेट चैलेंजेस क्या है सबसे ज़्यादा। आपने मेरे बारे में भी बात की, तो जो मैं ख़ुद भी इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, टैलेंटेड है, बट उनको उस तरीके से प्लेटफॉर्म से मिलती, उनको कनेक्टिविटी नहीं मिलती कि वो एक जगह पे जाके गवर्नमेंट के साथ या इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट करके अपनी क्रिएटिविटी को, अपने इनोवेशंस को आगे लेके आ सके। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेयरनेस और एजुकेशन की बहुत कमी है। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, पाकिस्तान में इनोवेटिव सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। मैं पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, बट हमारी यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट रिलेटेड सिर्फ आपको एनवायरमेंटल साइंसेज देखने को मिलेगा। देयर इज़ नो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड अदर डिपार्टमेंट्स। और भी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में इस सब्जेक्ट की रिलेटेड कमी है। तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक इतना क्लाइमेट से अफेक्टेड कंट्री है और वहाँ पे इसकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, अभी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको शॉर्ट कोर्सेज वगैरह करवाते हैं, बट अगेन दैट डजंट गिव यू द प्रॉपर टेक्निकल एजुकेशन या एक्सपीरियंस, आप उस तरीके से नहीं कर पाते। तो उस हवाले से थोड़ा बहुत आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को किस तरीके से इन चीज़ों को कनेक्टिविटी की तरफ लेके आना चाहिए? मोमिल, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में बहुत ही अहम और स्ट्रक्चरल आपका क्वेश्चन है जिस तरफ आप हमें लेकर आई हैं। एक तो ये है कि जो हमारे ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स हैं, हमने मसाइल तो डिस्कस किए, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, बहुत कोशिशें भी हो रही हैं। जैसे 2022 के फ्लड्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, जो इसमें अच्छी बात थी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मैं हमेशा कहता हूँ द बेस्ट पार्ट ऑफ द वर्स्ट मानसून वाज 2-3 चीज़ें। एक तो हमारा यूथ बहुत एक्टिव था,
वो अपनी तरफ से जा रहे थे रिहेबिलिटेशन की कोशिश करने से पहले, जो रेस्क्यू के एफर्ट्स थे, सपोर्ट रिलीफ के एफर्ट्स वो पहुंचा रहे थे। एनजीओज बहुत सी गई थी, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आके तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन हमें ज़्यादा स्ट्रक्चरल भी काम करने की ज़रूरत है ताकि हम इस तरह के नुकसानात को पैदा होने को कम से कम कर सकें। उसमें चूँकि क्लाइमेट चेंज इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज, लिहाजा इसके लिए सॉल्यूशंस भी इनोवेटिव चाहिए। अच्छा, वो जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए वो ज़ाहिर है हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ला सकते हैं, मुख्तलिफ शोबे ला सकते हैं, लेकिन इनोवेशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसमें होती है वो यूथ है। क्योंकि इनोवेशन के लिए आपके पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आप के पास एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास एक लाइफ लंबी होनी चाहिए कि आप नए नए तजुर्बात कर सकें। तो ये सब चीज़ें यूथ को एक बहुत सेंट्रल पॉइंट बनाते हैं, सूटेबल बनाते हैं। और हमारे यूथ, हेड्स ऑफ टू देम, आप भी उनमें से एक हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रहा है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत जो नेशनल यूथ काउंसिल है, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने लोगों को सिलेक्ट किया, बहुत ही काबिल और बहुत ही शाइनिंग स्टार्स को उन्होंने हिस्सा बनाया और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग मुझे करवाने का मौका मिला क्लाइमेट चेंज पे। हमने प्लान बनाए, जो रीजनल प्लान्स हैं उस पर कैसे काम किया जा सकता है, तो काफ़ी कुछ हो रहा है। लेकिन जब आपने एजुकेशन की बात की तो आपने बहुत स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल चीज़ की तरफ निशानदेही की। वो क्यों? हुकूमत का जो रोल है, मुझे लगता है कि वो एक फैसिलिटेटर, वो एक ऑर्गेनाइज़र इस तरह का ज़्यादा है। जो कुछ कर रहे हैं उसके अलावा अगर वो एजुकेशन, मुख्तलिफ एजुकेशन में प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है और यूनिवर्सिटी भी है, जिनको रिफॉर्म्स किया जा सके, और सबको करना चाहिए। लेकिन जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जैसे आपने बताया। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में मैं जब भी किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, जो हमारे होस्ट होते हैं वो हमें इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट की तरफ लेके जाते हैं। मैं कहता हूँ वहाँ तो चले ही जाएंगे, ज़रा हम बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ जाएं। एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, बिजनेस, इवन लिटरेचर या टेक्नोलॉजी, साइंस, इनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने करिकुलम को अपडेट करें। और मुझे ये खुशी है कि मैं जब 20-22 यूनिवर्सिटी में जाकर तो मैंने लोगों को मोटिवेट किया, स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को, कि वो जिस भी डिपार्टमेंट में है क्लाइमेट चेंज कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। मैं फिर उन्हें मेथोडोलॉजी बताता हूँ। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो क्लाइमेट चेंज ज़्यादा आसानी से हमारे यूथ में शामिल हो सकेगी, उनकी एक्सपर्टीज़ में, काम में। और जब वो जॉब से निकलेंगे, जब वो अपनी यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, तो जिस जॉब में भी जाएं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनजीओ, बिजनेस, जिसमें भी जाते हैं या इंटरनेशनली जाते हैं, वो अपने शोबे में दे वुड स्टैंड आउट। क्यों? मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में हर साल लाखों डॉक्टर निकलते हैं और ज़ाहिर जॉब भी मिलना आसान नहीं है। लेकिन मुझे बताएं कितने डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो क्लाइमेट चेंज के भी एक्सपर्ट होंगे? ठीक, अगर कोई हो जाए उसके लिए अपॉर्चुनिटी कितनी होगी इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड? बहुत ज़्यादा। और मेरे इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, जब मैंने उन्हें गाइड किया तो उन्हें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिली, उन्हें इंटरनेशनल जॉब्स मिली। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक स्टूडेंट को गाइड किया, आपने कभी मेडिकल को तो छोड़ें, कभी डेंटिस्ट्री का नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने मुझसे गाइडेंस ली। मैंने उनकी एक असाइनमेंट थी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की स्टूडेंट है दुआ, उनको मैंने गाइड किया कि आप किस तरह अपनी असाइनमेंट में क्लाइमेट चेंज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। उन्होंने किया, उनको 1 से ज़्यादा जगहों पे अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये ना सिर्फ हमारी यूथ के कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया की प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की रेजिलियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हमारे हायर एजुकेशन में खासकर एजुकेशन को रिफॉर्म किया जाए। इन्वायरमेंटल साइंसेस का हायर एजुकेशन कमीशन का नया उन्होंने अपडेटेड सिलेबस निकाला है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन मोमल, आपके अगर आप देखें कि बहुत ही अच्छा है, उसमें क्लाइमेट चेंज को ऐड किया है, लेकिन मुझे बताएं कि आपको वो कोर्स कैसा लगेगा जो क्लाइमेट चेंज पे तो हो लेकिन उसमें UNFCCC का जिक्र ना हो, जो क्लाइमेट चेंज पे कोर्स तो हो उसमें कॉप का जिक्र ना हो, क्लाइमेट चेंज पे कोर्स तो हो, ये इन्वायरमेंटल साइंस का जो मोस्ट सूटेबल समझा जाता है उसमें क्लाइमेट फाइनेंस का जिक्र हो ना हो। तो जब इस तरह की चीज़ों को हमें मज़ीद अपडेट करना पड़ेगा ताकि हम
जिस तरह बाकी शोबों में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, हमारा यूथ ज़्यादा कैपेबल, और अभी तक जो मेरे ख्याल में यूथ की इंगेजमेंट है, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन आम यूथ के लिए इट्स मोर लाइक ए वॉलेंट्री इंगेजमेंट्स। सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा जो मैं कह इनोवेटिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जो आउट ऑफ बॉक्स है, ज़रा स्टेटस को से हट के सोचने की ज़रूरत है, और जिसमें चेंजेस आ रही हैं लेकिन जिसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। Thank you so much. I think this would be the end of our podcast, and thank you so much for watching this. We'll meet in the next podcast, inshallah, with another informative topic. और हमारे गेस्ट का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टर्म्स और क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ों को बहुत अच्छे से हमारे ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन किया. सो दिस वुड बी अ ग्रेट पॉडकास्ट. ज़रूर वॉच कीजिए. थैंक यू सो मच.